Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the new chapter, that is the earthquake. So हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हमारी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है. एंड देन अर्थक्वेक आता है तो क्यों आता है, कैसे आता है, और हम किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं अगर कभी हम ऐसे एरियाज में जाएं जो कि अर्थक्वेक प्रोन हो और वहाँ पर आ जाए. व्हाट कैन बी द सेफ्टी प्रिकॉशंस यू कैन टेक, what are the hazards of the earthquake. We will be talking all about these things today. All right. The earthquake topic is totally important for the school examination as well as the Olympiad. So you should basically pay attention to this lecture, all right, and watch it till the end. You all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiad level, right? So that would be a good thing so that you can study the topic from these video lectures. If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the code TTB08 in the search box of the Telegram app, and then you can join the channel and access all the DPPs and study material. Alright, now see, this is a team which is putting so much effort for you all so that we can provide you the quality lectures you want so that you can crack all your examination goals. Either they are the school examination or the Olympiad. So that is what our main aim is, that we are providing these lectures for free. So make sure you share these video lectures to everybody, every one of your friends, alright, and do make sure that you do watch these video lectures till the end and you crack the examination. Alright, that is the main thing, that you should go for it. Now see, in accordance to that, we have prepared some packages for you all. So that is the main thing. You need to go on the website www.talkingtextbooks.in. If you go on that website, you are going to see two type of packages for every class, and these are the full package and the test series. फुल पैकेज में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए चाहिए होती हैं. दैट इज़ द स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, homework submission, bi-weekly quizzes, periodic test papers. All these things will be provided to you. And if you want to go for the test series, then you can do that too, right? You will be getting the periodic test papers, recorded live classes, and bi-weekly quizzes. And the most important thing is you need to write the code CY Live to get a 30% discount, right? And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. All right? So that is all. ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए about the talking textbooks and how you can connect with us. So that is the main thing. Today we are going to study about the structure of the earth and the earthquake. Alright, so we will be talking all the necessary things about the earthquake. Now see, what you need to do is, you need to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is the most thing you should do. Alright, this is the 8th chapter. So हम 7 chapters already पढ़ चुके हैं. That is why do not forget those 7 chapters while reading or studying the 8th one, right? That you need to understand. So what you need to do is, you need to revise daily so that you do not forget the first to 7 chapters. Alright? Now let's get started. क्या क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हम लोग देखेंगे. लेट्स सी, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक, अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, किस तरीके से वो आता है, किस तरीके से अकर होता है, सीस्मोमीटर, व्हाट इज दैट, सीस्मोग्राम, व्हाट इज दैट, हैजर्ड्स ऑफ अर्थक्वेक, or safety measures at the time of earthquake, what you can do, what you should be doing at the right moment so that you can save yourself from the earthquake or the very much destruction of the earthquake. Alright, so what you need to do is you should know about it first of all. So let's get started. Let's talk about the structure of the earth. हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो किस तरीके की है. हमारी अर्थ को पहले, मतलब जब स्टार्टिंग में लोगों ने इसके बारे में जाना एंड दे फर्स्ट स्टार्टेड टू डिस्कवर ऑल द थिंग्स अबाउट द अर्थ, तो उनको ये लगता था कि हमारी अर्थ एक सॉलिड है, एक एक परफेक्ट सॉलिड है, ठीक है. वो उन्होंने दिमाग से सोचा कि भाई ये ऐसा है, या फिर उनको ऐसा लगा दी कि अबाउट थ्योरीज अबाउट दैट, ठीक है. बट ये यू कैन से ऐसा लोगों को पता चला आफ्टर टेकिंग वेरी मच ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, उन्हें ये पता चला कि एक्चुअली में अर्थ एक सॉलिड नहीं है. इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. व्हाट इज दैट? इट इज़ लाइक अनियन. अनियन में जैसे लेयर बाय लेयर होती हैं, ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. Initially, Earth was considered to be a uniform solid, but it consists of different concentric shells like a boiled egg.
पहले ऐसा माना जाता था कि भाई वो एक परफेक्ट सॉलिड है, ठीक है, एंड उन्होंने ये बोला लेकिन इसमें तो क्या होता है, लेयर्स होती हैं, ठीक है, इट हैज वेरी कंसेंट्रिक लेयर्स. These shells or layers are divided into 3 parts, crust, mantle and core. 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं. Let me tell you all the 3 parts here. So देखिए पहला पार्ट, पहला यू कैन से शेल, वो होती है आउटर वन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन. फिर दूसरी होती है ये रेड कलर की आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है, एंड दिस इज द थर्ड वन, ठीक है. सो दिस इज द क्रस्ट, मेंटल, ब्लू वन जो अभी आप देख पा रहे हैं, इट इज एन आउटर कवर, ठीक है. तो ये जो है वो क्या है, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट. Then it is the mental and then both these two are considered as the core. लेकिन यहाँ पर भी इसको भी 2 में डिवाइड कर दिया, 2 कोर, आउटर कोर एंड द इनर कोर, ठीक है. सो दिस थिंग जो कि ये दोनों एक साथ जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं कोर. दिस वन, द रेड पार्ट इज द मेंटल, ठीक है, एंड दिस इज द क्रस्ट, ठीक है. तो हमारी जो अर्थ है वो लेयर्स में है, ठीक है, हमारी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लेयर्स के फॉर्म में है. सो देखिए ये जो लेयर्स होती है वो पहला कौन सी होती है, क्रस्ट, आउटर वन, देन मेंटल एंड देन कोर, ठीक है. अब देखिए द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, आउटर कोर एंड द इनर कोर. अब ये जो दो एक साथ कोर बोले जाते हैं इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है. ये जो अंदर वाला है दैट इज द इनर कोर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर कोर बोलते हैं. एंड दिस वन इज द आउटर कोर. ऑलराइट, नाउ यू नो दैट देयर आर 4 parts of the or 4 structures you can say or 4 layers जिसमें हमारी अर्थ जो है बनी होती है. बहुत सारे ऐसे हम लोग फैक्टर्स जो हैं वो देखेंगे. लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 things one by one. So let's talk about the first one, ठीक है. पहला वाला है क्रस्ट, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं. सो यू कैन सी द आउटर ब्लू स्ट्रक्चर जहां पर एग्जैक्टली हम रहते हैं, ठीक है. द सरफेस ऑन विच वी लिव कम्स इनटू द क्रस्ट, सो वी लिव ऑन क्रस्ट, ठीक है. तो आप जो सरफेस देख रहे हैं वो क्रस्ट की देख रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच आवर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स रेस्ट. सो बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि भाई हमारी होल अर्थ पे ओशियंस हैं, ठीक है, एंड कंटिनेंट्स हैं, राइट. तो ये जो 2 चीजें हैं, ओशियन एंड द कंटिनेंट्स, वो किस में लाई करते हैं, क्रस्ट में लाई करते हैं. सो वी लिव ऑन दैट सरफेस एंड ऑन दैट कॉन्टिनेंट. सो बेसिकली वी लिव ऑन व्हाट, वी लिव ऑन क्रस्ट. सो ये जो आउटर लेयर है जहां पर आपको कंटिनेंट्स एंड ओशियंस मिलते हैं, वो जो जगह है, और वो जो अपर लेयर है वी कैन से दैट इज द क्रस्ट, ठीक है. It is the thickest in the continental region where it has average thickness of 40 kilometers. Alright, so you should remember to note these down. ठीक है, तो यहाँ पर देखो 40 किलोमीटर्स. जब कभी भी हम कहाँ बात करें, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके से डिजाइन है. लेट मी टेल यू विद दैट कि लेट्स से किस तरीके से, ठीक है, लेट इट बी दिस इज द कॉन्टिनेंट्स, जो उसका पार्ट है, वो पार्ट जो वो लैंड पार्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंट्रीज वगैरह हैं. सो बेसिकली जो लैंड पार्ट होता है वहां से क्रस्ट कैसा होता है, ज्यादा थिक होता है, ठीक है, जिसका कितना यू कैन मान सकते हो, थिकनेस मान सकते हो 40 किलोमीटर्स तक का होता है. बट जहाँ पे सी होता है, तो आप ये बात जानते हैं सी के लिए तो पानी चाहिए ना. सो यू कैन से कि यहाँ से इतना हाइट नहीं मानते हुए हमने इसका सी बेड से लेके उसका क्रस्ट की हाइट मानी है, ठीक है. सो यू कैन से कि लेट इट बी, ये है हमारा क्रस्ट, ठीक है, लेट इट बी कि भाई ये हमारा क्रस्ट है, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो इसका टोटल यू कैन सी लेंथ और यू कैन से द डेप्थ और थिकनेस ऑफ दिस क्रस्ट इज कॉन्टिनेंट्स पे जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहां पर तो इसका कितना है 40 किलोमीटर तक का थिकनेस है. लेकिन जहां पर सी है तो हम क्या करते हैं, लैंड को सी बेड से मेजर करते हैं. सो इस वक्त इसका थिकनेस कितना हो जाता है, 10 to 12 किलोमीटर ही रह जाता है. सो दिस डिस्टेंस इज ओनली 10 to 12 किलोमीटर,
ठीक है। लेकिन अगर हम लैंड की बात करते हैं तो इट इज अप टू 40 किलोमीटर्स, ठीक है। सो ये जो क्रस्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर ओशियंस और लैंड दोनों ही होते हैं, दैट इज वाई इसकी जो थिकनेस होते हैं वो वेरी करती है, ठीक है। जहां लैंड होगा वहां पे कम से कम आपको 40 किलोमीटर तक का क्रस्ट मिलेगा, एंड जहां पे आपको सी मिलेगा, तो हम लोग पानी का लेंथ नहीं मेजर करते, वी टॉक अबाउट दी सी बेड से लेके जो अर्थ का क्रस्ट है, तो वो जो थिकनेस है वी कॉल दैट, एंड वो कितना है 10 to 12 किलोमीटर्स ओनली, ठीक है। सो ये जो क्रस्ट होता है जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ओशंस वगैरह होते हैं, वहां पर इसकी जो लेंथ होती है और जो थिकनेस होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है एट दी अदर प्लेसेस, ठीक है। ये आपको पता चल चुका है। सो दिस इज द टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्रस्ट, दैट इज द रीजन जो कि आउटर सरफेस है, ठीक है। सो इट इज अप टू दी 40 किलोमीटर मैक्सिमम, और इट इज अप टू दी 10 to 12 किलोमीटर व्हेन देयर इज ओशियन और दी सी, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, एंड दैट इज द मेंटल, ठीक है। अब ये मेंटल कहाँ एग्जिस्ट करता है, कैसा होता है, सो सी ये जो मेंटल है दैट इज द रेड पार्ट यू कैन सी हियर, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं दिस वन, द रेड पार्ट इज एक्चुअली व्हाट, मेंटल, ऑलराइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसकी थिकनेस वगैरह मैं सब आपको बताती हूँ। सो बेसिकली देखिए, द लेयर beneath द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। सो वो लेयर जो अर्थ क्रस्ट के नीचे होती है, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे होती है वो क्या होती है, मेंटल होती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, मेंटल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 2900 किलोमीटर क्यों, ठीक है। ये जो है अकाउंट्स करती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसकी यू कैन से डेप्थ कितनी होती है, 2900 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। डू यू नो द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर, ये होती है रेडियस ऑफ द अर्थ। और मेंटल का जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 2900 किलोमीटर। सो वी कैन से दैट कि करीबन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ होती है, दैट इज वाई ये क्या होती है, काफी थिक होती है, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि भाई ये हाफ ऑफ द रेडियस को ऑक्यूपाई कर लेती है, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग कि भाई काफी ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, काफी बड़ी है ये मेंटल, ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डायनामिक प्रोसेस विच डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ द क्रस्ट प्लेट्स आर पावर्ड बाय द मेंटल। बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस जो होती हैं जिसकी वजह से क्रस्ट में प्रेजेंट जो प्लेट्स रहती हैं वो मूव करते रहती हैं, राइट। मूव करने के लिए जो पावर उन्हें मिलती है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो मेंटल प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो मेंटल इज यू कैन से द बेस, द बिग बेस और द सॉलिड बेस ऑफ द क्रस्ट, राइट, यू कैन से दैट। फिर देखिए, द मेंटल इज अ शेल ऑफ रेड हॉट रॉक, रिमेंबर इट, कैन यू सी द रेड कलर ऑफ द मेंटल हियर, सो इट इज द रेड हॉट रॉक, ठीक है, जो कि क्या करती है, अर्थ के मेटेलिक एंड पार्शियली मेल्टेड रॉक बोथ द इनर एंड आउटर क्रस्ट को कूलर रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट से सेपरेट करती है। आप खुद देखिए कि इस जगह पर जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है, लैंड है, तो वो कैसा एरिया है या फिर वो कैसा क्रस्ट है जहां पर टेम्परेचर काफी कम है, राइट। लेकिन इनर पार्ट जो है यानी कि इनर कोर है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई है। सो बेसिकली ये जो मेंटल है एक्चुअली में ये क्या कर रही है, रेड हॉट रॉक से बना होता है, जो कि क्या करते हैं, क्रस्ट जिसका टेम्परेचर काफी कम है और जो कोर है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इनको सेपरेट आउट करता है, ठीक है, इनको अलग अलग करता है। तो बेसिकली दिस मेंटल इज बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट, राइट, जहां पे कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्रस्ट का टेम्परेचर काफी कम है। सो इट मेंटेन्स द डिफरेंस एंड द सेपरेट बोथ द टेम्परेचर्स। सो आपको देख सकते हैं कि ये जो क्रस्ट का इनर यू कैन से मेंटल का जो इनर पार्ट है, जो विच इज क्लोज टू द कोर, उसका जो रॉक्स होंगी वहां पर काफी हाई टेम्परेचर की रॉक्स होंगी, राइट। ये काफी ज्यादा यू कैन से सॉलिड है, बहुत ज्यादा सॉलिड रहता है। एंड आप देख सकते हैं कि वो लेयर जो कि क्रस्ट के बिल्कुल नियर बाय होगी वो काफी कम टेम्परेचर की होगी, राइट। सो यू कैन से इट हैज वेरियस टेम्परेचर अबाउट द मेंटल, ठीक है। फिर अगला देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। ये हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें आपको मिलना शुरू होती है, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे क्रस्ट में क्या है, हमारे कोर में एक्चुअली अर्थ के कोर में क्या है, वहां पे मॉल्टन लावा है, दैट इज आयरन,
डेफिनेटली। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेंटल जो कि कोर को अलग कर रही है एंड क्रस्ट को अलग कर रही है, सो दिस मेंटल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जैसे कि सिलिकेट मिनरल्स, या जो कि मैग्नीशियम जिनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आयरन जिनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सो वो यहाँ पर मेंटल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डेंसिटी ऑफ द मैंटल इंक्रीजेस विद डेप्थ फ्रॉम अबाउट 3.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू अराउंड 5.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर नियर द आउटर कोर। यहाँ पे इसकी डेंसिटी बढ़ते जाती है। ये जो आउटर यू कैन से लेयर है, ठीक है, जो कि अर्थ के क्रस्ट के पास है, जो कि इनर है, ठीक है, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर ये जो लेयर है विच इज वेरी क्लोज टू द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसकी डेंसिटी यहाँ पर कैसी है, लो है। ठीक है, इट इज लाइक 3.5 ग्राम पर सीसी। और अगर हम नियर बाय देखें, ऐसा लेयर जो कि किसके पास है, आउटर कोर के बहुत नजदीक है, यहाँ पर अगर हम इसका डेंसिटी बोलेंगे तो इट इज अबाउट 5.5 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसका डेंसिटी जैसे जैसे आप अर्थ की क्रस्ट से जा रहे हैं टूवर्ड्स द कोर, तो जैसे जैसे आप जा रहे हैं मेंटल की डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, पहले 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर था, अब वो पास होते होते जैसे आप आउटर कोर के पास जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी जो यू कैन से डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो जाती है। ठीक है, इट इज़ नॉट यू कैन से इट इज़ नॉट दी एब्सोल्यूट और दी एग्जैक्ट वैल्यूज, थोड़ा बहुत ऑल्टर भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द मेंटल पार्ट। एक्चुअली मेंटल बहुत ही रॉकी एरिया होता है, मतलब वो एक ऐसा सरफेस होता है टोटली रॉकी होता है, जहां पर आउटर कोर के पास वाली रॉक्स बहुत हाई टेम्परेचर की होती हैं, वहीं पर क्रस्ट के पास वाली जो रॉक्स है वो बहुत ही लो टेम्परेचर की होती है। सो बेसिकली मेंटल जो होता है वो डेफिनेटली एक लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को सेपरेट आउट करके रखता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर, जिसमें भी हम लोग बात करेंगे आउटर कोर की। आउटर कोर यहाँ पे क्या है, आउटर कोर इज दिस पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट इज द आउटर कोर, ये जो शेल है ये है आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर इज अराउंड 200-300 किलोमीटर थिक। तो यू कैन सी कि भाई इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, ये वाली जो इसकी थिकनेस है दैट इज 200-300 किलोमीटर, राइट। लेकिन जो मेंटल की हम लोगों ने थिकनेस देखी थी वो कितनी देखी थी, वो हमने देखी थी 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी थिकनेस कितनी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दी यू कैन से द आउटर कोर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द आउटर कोर अपीयर्स टू बी इन मॉल्टन स्टेट। जो हम बोलते हैं कि भाई अर्थ के सेंटर पे क्या है, बहुत ज़्यादा मॉल्टन लावा है, वो क्या करता है, पिंक लावा रहता है, इट ऑलवेज मूव्स अराउंड। सो दैट लावा कहाँ पर पाया जाता है, आउटर कोर में, राइट। तो आउटर कोर कैसा है, मॉल्टन स्टेट में है, ऑलराइट। इट कंटेन्स आयरन एंड निकल इन मॉल्टन स्टेट। बेसिकली हम लोग क्या होता है, लावा इज दी मेल्ट यू कैन से मोल्टन आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली जो मोल्टिंग स्टेट है, ठीक है, जो पिघला हुआ लावा है उसमें क्या है, आयरन है, निकल है, और दैट इज इन दी लिक्विड स्टेट। इट अपीयर्स टू बी दैट इन लिक्विड स्टेट, ऑलराइट। इट ऑल्सो कंटेन्स सल्फर, सल्फर भी इसमें पाया जाता है। बेसिकली ये तीन चीजें इसमें पाई जाती है इन द मॉल्टन स्टेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी इनर कोर। इनर कोर जो छोटी सी बॉल आप देख रहे हैं, दिस इज द इनर कोर। ठीक है, ये एक सॉलिड बॉल होती है, लेकिन इसका टेम्परेचर बेहद ज्यादा होता है। द इनर कोर इज अबाउट 1300 किलोमीटर थिक एंड इज सराउंडेड बाय आउटर कोर। इनर कोर जो कि 2300 किलो ये 1300 किलोमीटर है, उसके बाहर आउटर कोर होता है। ठीक है, तो देखो ये है इनर कोर, फिर ये आउटर कोर इसके ऊपर आ जाता है, फिर मेंटल उसके ऊपर आ जाता है, एंड देन द क्रस्ट कवर अप ऑल दी थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला इसका स्ट्रक्चर। जो इनर कोर होती है वो एक सॉलिड बॉल होती है और ये आयरन की बनी होती है। सो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आयरन का बना होता है एंड इट इज सॉलिड बॉल। ठीक है, ये मॉल्टन स्टेट में नहीं होती, ऑलराइट। सो दैट इज द थिंग दैट वी वांट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ऑलराइट। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई जो अर्थ होती है वो लेयर्स में एग्जिस्ट करती है। देयर आर 4 लेयर्स, जिसमें से जो हम मॉल्टन स्टेट की बात करते थे वो किस में होगा, आउटर कोर में, राइट। जहां पर हम लोगों ने मैंटल देखा एंड दैट मैंटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई सो, बिकॉज इट इज सेपरेट द क्रस्ट एंड द कोर,
राइट। तो हाई टेम्परेचर से हम लोग को दूर रखती है, ठीक है। क्रस्ट जहाँ वो प्लेस है जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, द आउटर वन, ठीक है। एंड देन comes the inner core. Inner core is a solid ball. It is not in the molten state. वो solid ball होती है जो कि आयरन की बनी होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसका, बेहद ज़्यादा। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 थिंग्स। अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। सो वी नो दैट कि ये जो आउटर कोर होता है, दिस वन इन द मॉल्टन स्टेट, दिस मेंटल दैट इज द रॉक वन, ठीक है, बहुत हार्ड होती है, रॉक से बनी हुई होती है, ठीक है। एंड देन कम्स द क्रस्ट। ये जो क्रस्ट होता है, हमें ये बात पता चलती है कि क्रस्ट जो है वो किससे बना हुआ है, प्लेट से बना हुआ है। सो बेसिकली अर्थक्वेक का मतलब क्या हुआ, अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमेना है, वो तब अकर होता है जब कभी भी जो क्रस्ट में प्लेट्स होती हैं वो आपस से टकराती हैं, ठीक है, वो आपस में किसी तरीके का मूवमेंट करती हैं। इन दैट केस, सो सी, an earthquake is a sudden movement or a fracture in the crust and the upper layer of the mantle together called the lithosphere. This causes a series of shocks movements. यहाँ पर upper layer of the mantle and the crust में जो plates move on करती रहती हैं, वहाँ पे अगर गलती से sudden movement हो जाए, ठीक है, चलते चलते स्मूथली मूव कर रहे थे, अचानक से किसी तरीके का झटका, किसी तरीके का फ्रैक्चर अगर एग्जिस्ट होता है बिटवीन द प्लेट्स, देन ओनली वहां पर हम लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया है। इट स्टोर्स वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज। इनकी एनर्जी कम भी होती है और ज्यादा भी होती है, ऑलराइट। एंड फिर ये क्या होता है, सीरीज ऑफ यू कैन से आपको वेव्स मिलती जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होता है, सीरीज ऑफ यू कैन से मूवमेंट्स और वेव्स हमको मिलती जाती है। वी कैन गेट द इवन मोर एंड मोर शॉक्स आफ्टर सम टाइम, वी आर अगेन वी कैन गेट द अर्थक्वेक बेसिकली, राइट। तो अर्थक्वेक क्या हुआ, अचानक से आपको अगर किसी तरीके का झटका महसूस हो रहा है, दैट इज द अर्थक्वेक, जो कि किसमें कॉज, किसकी वजह से हो रहा है, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अचानक से कोई शॉक लग जाए या फिर अचानक से यू कैन से किसी भी तरीके का मूवमेंट, सडन मूवमेंट अगर आपको मिलता है बिटवीन द प्लेट, सो देयर कैन बी द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। An earthquake may range from a mild tremor, छोटे से छोटा हल्का फुल्का earthquake से भी, which will result in the vibrations of the ground to a large scale movement of the earth causing a widespread damage over a large area. जो earthquake होते हैं, छोटा भी हो सकता है, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ इतना सा फील होगा कि धरती हिल रही है, that's it, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ना ही तुम्हारा कोई नुकसान होगा, ठीक है, ना ही कुछ होगा। तो वो इतना हल्का भी हो सकता है और वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है कि भाई बिल्डिंग्स गिर जाएं, और बहुत ही लार्ज एरिया को कवर अप करते हुए भी हो सकता है। दिस कॉजेज दी वेव्स, जो कि वेव होती हैं, जो कि आउटर एयर को हमको अफेक्ट कर जाती है, क्योंकि प्लेट्स तो नीचे मूवमेंट कर रही हैं। अर्थक्वेक आ रहा है, वो अंदर आ रहा है, राइट, इन यू कैन से इन दी outer layer of the mantle, you can say outer part of the mantle, or you can say the crust। तो वहां पर बहुत ज्यादा अगर ऐसा मूवमेंट होता है, तो वो तो काफी ज्यादा नीचे होता है, राइट। उसके बावजूद भी हम तक वो वेव्स पहुंच जाती हैं, वो डिस्ट्रक्शन हम तक हो जाता है। सो देयर कैन बी वेरियस रेंज ऑफ अर्थक्वेक विच कैन अकर, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेट्स। हम लोग देखते हैं, बट ये स्टडी जब हम अर्थक्वेक की करते हैं, सो वी कॉल दैट ब्रांच ऑफ साइंस एज द सीज्मोलॉजी, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द अर्थक्वेक्स एंड रिलेटेड फिनोमेना इज नोन एज सीज्मोलॉजी। सो व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट अर्थक्वेक, यू टॉक अबाउट सीज्मोलॉजी, ठीक है। किस अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ टू मेजर दैम एंड व्हाट कैन बी द कॉजेज, किस तरीके का कितना अर्थक्वेक आ सकता है, ये सब चीज़ें हमें सीज्मोलॉजी में होती हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट ऑल द फिनोमेना रिलेटेड टू द इमर्जेंस एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ अर्थक्वेक आर कॉल्ड सीज्मिक। ऐसे फिनोमेना जिनकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है या आकर हो सकता है, उन सभी को हम किस में क्या बोल देते हैं, सीज्मिक बोल देते हैं। इवन आपको पता है, ये जो साइक्लोन्स आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, वो भी अर्थक्वेक की वजह से एज अ कंसिक्वेंस हो सकते हैं, राइट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए ये है पूरा मैप, और आप ये ब्लैक लाइन जो देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक लाइन होती हैं दीज आर द प्लेट्स, ठीक है। ब्लैक लाइन जो है, ये ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं, दीज आर द प्लेट्स। पूरी की पूरी अर्थ का क्रस्ट जो है वो प्लेट से मिलकर बना होता है। बहुत सारी प्लेट्स वहां पे एग्जिस्ट करती है और ये सारी प्लेट्स मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। सारी की सारी प्लेट्स क्या करती है, मूवमेंट करती है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन इनटू मेनी लार्ज पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड हैं और ये बहुत सारी प्लेट्स मिलकर बनाती हैं। टेक्टोनिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ रॉक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन दी अर्थ मूवमेंट्स। सो बेसिकली अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है और जिस तरीके का मूवमेंट इनसाइड दी अर्थ हो रहा है, जिस तरीके से पत्थर मूव कर रहे हैं, रॉक मूवमेंट हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई प्लेट कौन से रॉक मटेरियल से बनती है, किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, एंड वी टॉक ऑल अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। देखिए द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 लार्ज प्लेट्स एंड सेवरल स्मॉलर प्लेट्स बिकॉज वी नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। सो बेसिकली दोज कॉन्टिनेंट्स आर दी 7 लार्ज प्लेट्स, ठीक है। और छोटी छोटी बाकी बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। यू कैन सी हियर जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं दीज आर 7 एंड अदर स्मॉलर प्लेट जो कि नॉर्मल होती हैं, ठीक है। बहुत सारी सेवरल छोटी छोटी प्लेट्स हमको वहां एग्जिस्ट करती हुई मिलती हैं। Now see, due to slow movement inside the earth, these plates move with respect to each other by about a few inches in a year. अगर आप एटलस पढ़ना जानते हैं या फिर एटलस में थोड़े भी बहुत इंटरेस्ट अगर आपको आता है तो आप देखिएगा एटलस खोलकर कि जो स्ट्रक्चर था, लैंड का स्ट्रक्चर था बहुत 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 पहले, लाइक यू कैन सी आफ्टर द डायनासोर और यू कैन से बिफोर द डायनासोर, आफ्टर द डायनासोर दैट विल बी गुड। अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो भी लैंड था वो पहले बीच में एक तरीके से, वो एक ही लैंड था, मतलब जितना भी लैंड था वो एक था, एंड देन सारा सराउंडेड बाय द वाटर था। धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, बिकॉज द प्लेट्स मूवमेंट, धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग सेपरेट हो गए। नाउ देयर आर सो मच थिंग्स। ये जो हमारा अफ्रीका है वो अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, अमेरिका अलग हो गया। सो दीज आर द पीसेस ऑफ लैंड जो कि अब दूर दूर हैं, ठीक है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हैं। ये किसकी वजह से हुए, प्लेट के मूवमेंट की वजह से। सो देयर आर वेरी मच स्लो मूवमेंट इज गोइंग ऑन इनसाइड द अर्थ बिकॉज ऑफ द मोल्टन लावा मे बी, राइट। सो बेसिकली बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट इनसाइड द अर्थ होता है एंड दैट इज द रीजन, दैट इज वाई ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते रहती हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, वो हर साल थोड़ी बहुत इंचेस दे मूव अबाउट, वो दूर हो जाती है थोड़ी बहुत इंचेस, इवन सम में कम क्लोजर टुगेदर, ठीक है। सो देयर कैन बी द मूवमेंट, दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लेट्स। नाउ सी द एनर्जी डेवलप्ड बाय दी स्मॉल मूवमेंट्स इज वेरी लार्ज। अब ये जो मूवमेंट होते रहते हैं इनसे एनर्जी डेवलप होती है एंड दैट एनर्जी इज वेरी लार्ज, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इसी एनर्जी की वजह से होता है। The boundaries of the plates are prone to rigorous geological activity and the result of these movements with respect to each other is earthquake, volcano, mountain formation, etc. So basically ये जो plates होती है ना, ये किसी ने काट कर तो बनाई नहीं है कि भाई हम इनको बिल्कुल अच्छे से कट कर देते हैं तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। These are natural. सो उनका क्या रहता है, ये प्लेट्स, जैसा कि आप इसकी शेप दे सकते हो, कोई भी कहीं से भी प्लेन नहीं है, दे हैव आर्बिट्रेरी शेप, राइट। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स जिनकी आपस में जो सरफेस है ये बहुत बहुत रफ है, दे कैन बी, यू कैन से रॉक कमिंग आउट, ठीक है। हो सकता है कोई एक, मतलब इतना स्मूथ है जैसा कि ये बोर्ड है स्मूथ, ठीक है, जैसे तुम्हारी कॉपी स्मूथ है, इतना स्मूथ तो कोई भी प्लेन नहीं होगा, ठीक है। सो व्हेनेवर दीज प्लेट्स मूव अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, ये रफ पार्ट है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द, देखो जैसे जैसे मान लो कि भाई ये है एक सरफेस, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये वन प्लेट है और यहाँ पे आ रही है दूसरी प्लेट, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके की है, ठीक है, दिस इज प्लेट 2। ये दोनों जब आपस में जाने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो ये रफ साइडेड आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टक भी हो जाए वहां पे, ठीक है, कोई रॉक स्टक हो जाए, ठीक है, हो सकता है बहुत बहुत रफनेस के साथ ये लोग एक दूसरे के पास से गुजरे। यहाँ से जो भी सडन मूवमेंट होता है और यहाँ से जो टकराहट होती है, जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इनकी वजह से ही वॉल्केनोज आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं, इवन माउंटेन फॉर्मेशन तक हो सकता है,
ठीक है, एंड दैट इज वाई इनकी वजह से ही वी आर गोइंग टू सी द अर्थक्वेक एज ई फिनोमेना। ठीक है, तो हमें अर्थक्वेक फिनोमेना सिर्फ इन्हीं वजह से मिलता है बिकॉज ये जो प्लेट्स होती हैं ये स्मूथ नहीं होती हैं। ये प्लेट्स कैसी होती हैं, इनकी सरफेस बहुत ही रफ होती है, इनके एजेस बहुत ही रफ होते हैं। ठीक है, एंड वी नेवर नो कि भाई हम किसी ने आर्बिट्रेरी थोड़ी यहाँ उसको जाके कंस्ट्रक्ट किया है, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन नेचुरल, और नेचुरल में कोई भी शेप हो सकता है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, now see the theory that the surface of earth is made up of lithospheric plates which move is called plate tectonics। plate tectonics की जो थ्योरी है वो क्या है कि भाई यहाँ पर बोला गया है जो हमारा क्रस्ट है और जो हमारा यू कैन से आउटर मेंटल है, वो जो आउटर सरफेस ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट है ये मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फेयर बनाते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि हमारी जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो लिथोस्फेरिक प्लेट से मिलकर बनी है। ठीक है, इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स बोला जाता है। ऑलराइट, नाउ सी दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड न्यूली फॉर्मिंग माउंटेन्स। ये थ्योरी आपको बता सकती है कि भाई कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, कहाँ पर आ सकता है, कितना ज्यादा आ सकता है, थोड़े बहुत यू कैन से प्रेडिक्शंस बता सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनोज कहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ पे नए नए माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं, just by the studying of these plate tectonics you can get that। ठीक है, फिर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जानते हैं हमारा हिमालय, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, यू कैन से आउटर पार्ट इन द नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिमालय है ये टू प्लेट्स के टकराने से बना है। कैसे, देखिए, the mountain system of the Himalayas is believed to have been formed by the collision of two continental plates, the Eurasian plate and the Indian plate। यूरेशियन और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराए तो वहां पे माउंटेन यानी कि हमारे हिमालय क्रिएट हो गए। सो सी these two plates whenever they collide or whenever do something they can be destructive or they can be something constructive, so they made the mountain, right? So that is why they can be constructive too। अब देखिए अर्थक्वेक किस तरीके से अकर होता है, लेट्स सी। अर्थक्वेक जनरली प्लेट बाउंड्रीज पर अकर होता है। ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज, रिमेंबर दैट, प्लेट बाउंड्रीज पे अर्थक्वेक क्या होता है, अकर होता है। अब देखिए एज द प्लेट मूव्स दे रब अगेंस्ट ईच अदर एट द एजेस ऑफ द प्लेट्स वेयर द अर्थ क्रस्ट इज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, फॉल्स आर फाउंड। सो सी लेट इट बी कि भाई ये एक क्या है, प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक उधर जा रही है एक इधर आ रही है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट कि ये दोनों आपस में मूव कर रही हैं। अब ये एक्चुअल में इतनी प्लेन तो होती नहीं, किसी ने चाकू से तो इन्हें काटा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये इतना प्लेन नहीं होती है, देयर कैन बी सम रफनेस, सम रॉक क्लाइडिंग, और यू कैन से बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हो सकती हैं। सो यू कैन से दैट कि जहां पर भी यू कैन से दैट जहां पर भी वो टकराहट होगी, ठीक है, जैसे स्ट्रक हो जाएंगी अगर एक दूसरे के, लेट्स से प्लेट्स आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर एंड दे गॉट स्ट्रक, एट दैट टाइम वहां पर हमें फॉल्टी जोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस वो एरिया, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर एक्चुअली द फॉल्टी जोन्स। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में फॉल्स को फाउंड आउट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव रफ सरफेसेस। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा रफ होती हैं। समटाइम्स द रॉक्स ऑफ द प्लेट्स गेट लॉक्ड टू ईच अदर। कभी कभी क्या होता है, मूवमेंट अगर हो रहा है एंड दे गॉट लॉक्ड, लेट्स से अब लेट्स से किसी भी तरीके से आप मान सकते हैं कि इस तरीके की कोई एक प्लेट है, या फिर लेट इट बी समथिंग लाइक कोई, जैसे मैंने आपको बताया था डायग्राम बना के कि देयर इज वेरी मच रफनेस इन दी बाउंड्रीज। ठीक है, तो हो सकता है जैसे कि हम लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा था, फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक सरफेसेस रफ होती हैं, उसमें वेरियस हिल्स एंड वैलीज होती हैं। तो यहाँ पे प्लेट्स जो हैं उनमें भी तो हिल्स और वैलीज हो सकती हैं, डेफिनेट सी बात है। प्लेट्स की जो बाउंड्री है वहां पर भी तो हिल्स एंड वैली हो सकती है, वो भी तो रफ सरफेस हो सकती है, राइट। तो एट दैट टाइम अगर वो कभी स्ट्रक हो जाए बिकॉज ऑफ दोज हिल्स और वैलीज, अगर वो कभी स्ट्रक हो जाती है, दो सरफेसेस आपस में स्ट्रक हो जाती हैं, तो व्हाट हैपन, बिकॉज द जैग्ड एजेस ऑफ द टू प्लेट्स गेट लॉक्ड एंड प्रिवेंट द प्लेट्स फ्रॉम मूविंग। अब जब वो एक जगह स्टक हो गई हैं तो वो मूव नहीं कर पा रही क्योंकि वो अटक गई है ना वहां पर। सो व्हाट हैपेंस, वो ज्यादा जोर लगाएंगी वहां पर, डेफिनेट सी बात है, उनको तो मूव करना है, दे गॉट स्टक, तो दे विल कंटिन्यू टू पुट फोर्स ऑन टू दैट सो दैट दे कैन गो। अब वो ज्यादा फोर्स लगा रही है बिकॉज ऑफ दैट स्टकनेस, और वो अचानक से वो रॉक टूट जाती है एंड दे मूव लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या होगा, सडन मूवमेंट होगा, जोर लग रहा था, अचानक से पत्थर टूट गया एंड दे मूव लाइक दिस।
तो यहाँ पे सडन मूवमेंट हुआ, राइट, बिकॉज ऑफ दैट स्टकनेस यू कैन से दैट। एज अ रिजल्ट प्रेशर बिल्ड्स अप अगेंस्ट दीज रफ एजेस। अब जब फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, दैट दे वांट टू मूव बट बिकॉज दैट स्टकनेस दे आर नॉट एबल टू मूव, राइट। सो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रफ एजेस की वजह से वहाँ पर जो है प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है। As the build-up pressure continues, a point is reached when the rocks which are locked to each other, preventing the plates from moving, give way. पहले तो अटकी हुई थी, स्टक हो गई थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है बिकॉज द प्लेट्स आर मूविंग, बट ये दो जो हैं लॉक्ड हो चुके हैं और वो मूव नहीं कर पा रहे। दे वांट टू मूव बट दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। तो फिर क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये लोग क्या होता है, वहां पे जो रॉक्स जो अटक चुकी होती है वो स्ट्रकनेस जो है वो अचानक से गिव वे हो जाती है। दैट मीन्स वो जो पत्थर है वो टूट जाए या फिर समथिंग लाइक दैट, दे रॉक्स गिव वे, ठीक है। वो क्या करती है, वो टूट जाती है, अलग हो जाती है आफ्टर दैट प्रेशर बिल्डअप। अब क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रेशर बिल्डअप हो चुका था, सो देयर कैन बी वेरियस टाइप ऑफ ह्यूज एनर्जी ओवर देयर। The plates start rolling in the direction in which they were moving. This results in the earthquake. यहाँ पर देखिए कोई भी सरफेस ऐसे मूव कर रही है, आराम से मूव कर रही है, अब वो स्ट्रक हो गई, जाने नहीं पा रही, बट दे वांट टू मूव, दे कांट मूव बट दे वांट टू मूव। अब वो आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, अचानक से वो क्या करेगी, उस रफनेस को, स्टकनेस को हटाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग विद अ वेरी मच सडननेस, एंड दैट्स हाउ अर्थक्वेक अकर्स ओवर देयर। सो देखिए, फोकस इज द पॉइंट वेयर द रॉक्स गिव वे। जहां पर रॉक्स अटकी हुई होती है और जहां पर वो रास्ता देती है आफ्टर दैट मच प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, क्योंकि उसी पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। इस फोकस के वर्टिकली ऊपर अगर हम जाएं, वी गॉट द पॉइंट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज द एपिसेंटर, ठीक है। उसके आगे देखिए, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव विद इन द अर्थ और अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड द सीस्मिक वेव। यहाँ पर जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टकनेस और बिकॉज ऑफ दैट कि भाई प्लेट्स मूव कर रही थी एंड दे गॉट स्टक एट दैट पॉइंट, प्रेशर बिल्ड अप एंड देन फाइनली व्हेन द रॉक्स गिव वे एट दैट टाइम, वहां पर बहुत सारी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ दोज वेव्स क्या हो रहा होता है, ये जो वेव्स आगे जा रही हैं ये पूरी अर्थ में ट्रैवल करती है एंड दे ऑल्सो कॉज ट्रैवल्स बिटवीन यू कैन से ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से यू गॉट टू फील दैट अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ, जिन्हीं की वजह से डिस्ट्रक्शंस होते हैं। सो द वेव्स दोज व्हिच मूव्स अवे इज नोन एज द सीस्मिक वेव्स, ठीक है। ये वेव्स क्या होती हैं, सीस्मिक वेव्स होते हैं। तो इस तरीके से अर्थक्वेक अकर होते हैं, ऑलराइट। All right, now let's move forward and let's see what is a seismograph. तो seismograph एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, seismograph को हम seismometer भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक की वेव्स को, सीस्मिक वेव्स को मेजर कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। सो ये किस तरीके का होता है, यहाँ पर एक ब्लॉक और या फिर एक वेट यहाँ पर टंगा होता है, ठीक है। देखो, हैविंग पेन अटैच टू इट सस्पेंडेड विद अ स्प्रिंग, तो इसको सस्पेंड कर दिया जाता है ना, पेन इज अटैच टू दिस वेट, ठीक है। पेन को जो है अटैच कर देते हैं, सच दैट द टिप ऑफ द पेन टचेस द शीट ऑफ द पेपर ऑन अ रोटेटिंग ड्रम। इस रोटेटिंग ड्रम के ऊपर पेपर लिपटा हुआ होता है, पेपर रैप होता है, ये ड्रम रोटेट करते रहता है एंड जो पेन है, जब वो वाइब्रेशंस हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ दोज वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थक्वेक, ये क्या करेगा, वेट की वजह से वाइब्रेट करेगा एंड व्हेन दिस पेन वाइब्रेट्स, दो इंक है उसकी वजह से आपको पेपर पे क्या मिलेगा, यू कैन सी द वेव्स ऑन द पेपर, राइट, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थक्वेक ऑन अ पेपर, ठीक है। दिस इज अ स्मार्ट थिंग। द शेकिंग ऑफ द अर्थ शेक्स द फिक्स्ड बेस। अब ये जो बेस है, यू कैन सी द बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो बेस है एक्चुअली में ये शेक होता है व्हेन द अर्थक्वेक हैपेंस, वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो इसमें भी तो इफेक्ट आएगा, ये भी जो है वाइब्रेट करेगा। इसके वाइब्रेट करने से ये जो ड्रम, ये जो वेट है ये वाइब्रेट करेगा, ये हिलेगा एंड उससे अटैच जो पेन है वो हिलेगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द वाइब्रेशंस ऑन द शीट ऑफ द पेपर, ऑलराइट। Now see, the pen tip records this movement on the sheet of paper. This is the output of the seismometer. So this drawing you can get from the pen is the output of the seismometer. This is the thing where you can study the earthquake.
द सीज्मोलॉजिकल आउटपुट लुक लाइक अ सीरीज ऑफ वेव्स एंड इज कॉल्ड सीज्मोग्राम। क्या बोलते हैं सीज्मोग्राम? दिस पेपर जिसके ऊपर हमें आउटपुट मिला है, दीज वेव्स जो हमें ड्राइंग्स मिली हैं, these are known as the seismogram, the output of the seismometer you can say। ठीक है, इसी तरह देखिए सीज्मोग्राम कुछ इस तरीके का रियलिटी में होता है, कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। ठीक है, ये जो है एक्चुअली में सीज्मोग्राम होता है, ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सीज्मिक वेव्स, इसी को हम सीज्मोग्राम बोलते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सीज्मोग्राम मतलब वो आउटपुट जो हमें मिल रहा है एज अ रिजल्ट, हमें जो स्टडी करने के लिए चीज मिल रही है, ग्राफ मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सीज्मोग्राम एंड सीज्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन प्रोड्यूस दैट। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड और द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। सो देखिए अर्थक्वेक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है या फिर कितना कम डिस्ट्रक्टिव है, ये चीज हम किससे जो है पता करते हैं, रिक्टर स्केल से। ठीक है, सो यू कैन गेट दैट कि यहाँ पर रिक्टर स्केल होता है जो कि कितना रखता है, यू कैन से देखिए 0 से लेके 10 तक का उसमें क्या रहता है, पॉइंटर्स रहते हैं। आप 0 से 10 तक के अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। सो आप रिक्टर स्केल के बेसिस पर, उसकी रीडिंग के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कोई भी अर्थक्वेक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है या फिर कितना कम डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप देखिए जब कभी भी आपको 0 to 2.9 रिक्टर स्केल पे मिलेंगी रीडिंग, तो आप बोल सकते हैं बहुत ही माइल्ड अर्थक्वेक है, दैट मीन्स कोई भी डैमेज नहीं हुआ है लेकिन रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। 3 से 5.5 तक का अगर आपको रीडिंग मिलता है रेक्टर स्केल पे, तो यू कैन सी इट इज मॉडरेट अर्थक्वेक है। फेल्ट बाय ऑल इंडोर्स, विंडोज में ब्रेक, थिंग्स में फॉल ऑफ फ्रॉम दी शेल्फ, दरवाजे खिड़कियां टूट सकती हैं, थोड़ी बहुत चीजें शेल्फ में से नीचे गिर सकती हैं, आपको वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, ये माइल्ड अर्थक्वेक है। जैसे ही 6.6 to 7 अर्थक्वेक आता है रिक्टर स्केल पे, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कॉजेज थोड़ा बहुत डैमेज आपको मिल सकता है और जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो फॉल ऑफ हो सकती हैं। ठीक है, चीजें गिर सकती हैं, तो ये लिटिल बिट ऑफ स्ट्रॉन्ग हम लोग बोलेंगे कि अब रिक्टर जो स्ट्रॉन्गनेस है वो ज्यादा हो गई है। फिर देखिए 7.1 से 7.9 तक का रिक्टर स्केल अगर आपको मिलता है, उसका रीडिंग मिलता है, तो आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर काफी अच्छे बने बने स्ट्रक्चर्स भी गिर सकते हैं। और 8 से 10 तो डिजास्ट्रस अर्थक्वेक है, मतलब ये सबसे खतरनाक अर्थक्वेक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे स्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स और ये सब भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो दैट कैन बी टेकन बाय द रिक्टर स्केल कि तुम बता सकते हो कि कब कितना डिस्ट्रक्टिव जो है अर्थक्वेक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्टर स्केल। सो बेसिकली रिक्टर स्केल हमें वो रीडिंग बता सकता है कि हम बता सकते हैं किस जगह पर कितने ज्यादा यू कैन से डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है या फिर नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग कि भाई अगर एक भी पॉइंट अगर इंक्रीज होता है रिक्टर स्केल पे, तो जो एनर्जी होती है अर्थक्वेक की वो 30 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। देखिए ईच इंक्रीज ऑफ 1 ऑन रिक्टर स्केल मीन्स अ 30-fold इंक्रीज इन द एनर्जी। इसका मतलब अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब 30 टाइम्स मोर एनर्जी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ 5 में जितना अर्थक्वेक आता है ना, उसका 30 टाइम्स एनर्जी अब रिलीज होगी 6 रिक्टर स्केल पे। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। एक अगर रिक्टर स्केल भी बढ़ जाता है, अगर 1 यूनिट भी बढ़ जाता है, तो भी आपको 30 टाइम्स ज्यादा एनर्जी अर्थक्वेक की हो जाती है और उसका डिस्ट्रक्शन फिर कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सो यू कैन गेट दैट बाय द इंक्रीज इन द रिक्टर स्केल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हजार्ड्स ऑफ अर्थक्वेक। दे कैन बी वेरियस हजार्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा हजार्ड्स हो सकते हैं। सो बेसिकली आप देखिए हजार्ड का मतलब होता है पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर, मतलब आपको कितना खतरा है, कितनी पॉसिबिलिटी है खतरे की, दैट नोन एज द हजार्ड्स। ठीक है, अर्थक्वेक हजार्ड्स वो डैमेज है जो कि ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को हुआ है बाय वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, अर्थक्वेक हजार्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन इवेंट और प्रोसेस एसोसिएटेड विद एन अर्थक्वेक दैट में अफेक्ट द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ पीपल। लोगों की नॉर्मल जीवन में किस तरीके का चेंज या फिर डिस्ट्रक्शन आता है, उसे हम एज एन अर्थक्वेक हजार्ड बोल सकते हैं इफ दैट डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। ठीक है, कुछ ऐसे हजार्ड है जैसे वाइब्रेटरी ग्राउंड मोशन। अगर आपको धरती में ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेशंस हो रहे हैं, आप खड़े हैं नॉर्मली एंड यू फील लाइक कि भाई हमारी जो अर्थ है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, सरफेस है, वो वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो बिल्डिंग को कोलैप्स कर सकती है। डेफिनेट सी बात है, वो वाइब्रेशन जो है वो बिल्डिंग को कोलैप्स कर सकते हैं।
फिर आप देखिए फ्लड इनटू इनहैबिटेड एरिया ड्यू टू सुनामीज एंड डैम ब्रीचेस, इफ दैट हैपेंस, मान लीजिए कहीं पर डैम है और वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है, सो दिस कैन ऑल्सो कॉजेज द फ्लड इनटू द वेरियस एरियाज। इवन अगर ये सी बेड पर होता है तो सुनामी आ सकती है, राइट, फ्लड ऐसे आ सकते हैं। Ground failure due to liquefaction. Liquefaction is the process by which water saturated sand or soil temporarily loses strength and act as a fluid. जहां पर सॉलिड या फिर सैंड एक लिक्विड की तरह बिहेव करे, वो फ्लो कर जाए, वो वहीं का वहीं नहीं रहे। जैसे हमारे क्या होता है सॉलिड, अगर हम देखें तो सॉइल क्या करता है, लेट इट बी, जैसे ट्रीज हैं, है ना, तो ट्रीज का जो बेस होता है, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी के अंदर होती है, सो दे होल्ड अप द सॉलिड टुगेदर, ठीक है, जितना भी सॉइल है आसपास में रूट्स पे, वो क्या करता है, होल्ड अप करके रखता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मिट्टी जो है वो बहती नहीं है, इट डज नॉट फ्लो, राइट, बट ड्यू टू दिस क्या हो सकता है, लिक्विफैक्शन हो सकता है। दैट मीन्स कि जो सॉलिड है, वो जो सॉलिड सॉइल है, वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, इट विल फ्लो, वो होल्ड अप नहीं करेगी चीजों को, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। अगर ऐसा होल्ड अप नहीं हो पाता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बहुत हम लोग, हमारे इवन हमारे घर भी तो मिट्टी पर ही है। सो इफ दैट हैपन्स, इफ दैट लिक्विफिकेशन हैपन्स, देन व्हाट विल हैपन कि हमारे घर का बेस कमजोर हो जाएगा, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स हैं वो फॉल हो जाएंगी। सो बेसिकली हमारा ही डिस्ट्रक्शन होगा इस केस में, राइट। फिर आप देखिए इम्पैक्ट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑन ओल्ड ब्रिक बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे एंशियंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, अगर लिक्विफैक्शन हो जाता है तो वो मिट्टी उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाएगी, ठीक है, दैट इज वाई वो होल्ड अप नहीं करके रखेगी। अब वो होल्ड अप नहीं करके रख पा रही है, दैट मीन जो बेस है, जैसे हम बोलते हैं घर की नींव बोलते हैं, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग की जो हम नींव बोलते हैं, तो वो नींव कच्ची पड़ जाएगी, एंड देन व्हाट, हमारा जो पूरा घर है जिस बेसिस पे वो खड़ा हुआ है वो फॉल हो सकता है, राइट। सो ये भी एक बहुत बड़ा यू कैन से हाजार्ड है। अर्थक्वेक्स अंडर द ओशन फ्लोर समटाइम जनरेट पावरफुल सी वेव्स कॉल्ड सुनामीज। अगर सी बेड में अर्थक्वेक आ जाए तो फिर हमें सुनामी फेस आउट करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग जो वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, उनको भेजेगी टूवर्ड्स द सी शोर, राइट। In deep water, tsunami can have width of 100 to 200 km and may travel hundreds of kilometers across the deep ocean, reaching speed of about 700 to 800 km per hour. So basically this is so huge. सोचिए अब इतनी तेजी से पानी अगर आता है तो that can cause many destruction because उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, राइट। सो बेसिकली डीप सी में ऐसा सुनामीज वगैरह आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दी सी बेड में जो हलचल हो रही है, जो अर्थक्वेक आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट, and that can be taken as the hazards of the earthquake, right? All right, now let's see कि भाई अगर तुम्हारे आसपास कोई बीच हो, even you can try the liquefaction, ठीक है, तो आप liquefaction ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर आप बीच पे जाते हैं तो आप उस सैंड में खड़े हो जहां पर पानी बार बार आते रहता है, तो जहां पर पानी बार बार आते रहता है, जब आप उस पर खड़े होंगे आप अपने टोज को हिलाएं एंड यू विल फील लाइक कि वो सैंड नहीं है, वो वाटर है, दैट मीन्स इट विल बिहेव एज अ लिक्विड, वो वहां पर सॉलिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर आप ड्राई सैंड में जाओगे दैट विल टेकन एज अ सॉलिड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द लिक्विड वेट सरफेस, तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई सॉलिड जो आप देख रहे हैं सैंड है वो बिल्कुल लिक्विड की तरह बिहेव करे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द लिक्विफैक्शन प्रोसेस, ठीक है। नाउ सी अर्थक्वेक का डेटा पुराने जगह पर, जो पुराने अर्थक्वेक्स आ चुके हैं उनके बारे में है कि बहुत जगह पे इंडिया में बहुत बार ऐसे अर्थक्वेक्स आए हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इवन आए हैं। उनमें से 8 अक्टूबर 2005 की मॉर्निंग को एक अर्थक्वेक आया था इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, जिसका 7.6 मैग्नीट्यूड था। नाउ यू कैन सी दैट ये कितना डिस्ट्रक्टिव है। इट फेल सेवरली इन पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न अफगानिस्तान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक 50,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें जाने गई थी। सो दिस 7.6 इज वेरी 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 डिस्ट्रक्टिव, यू कैन सी दैट, राइट। 7.6 में कितने सारे लोगों की जान गई। नेक्स्ट आप देखिए 26 जनवरी ऑन 2001 क्या हुआ था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था इन गुजरात, जिसमें 90,000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई थी, राइट। पावरफुल अर्थक्वेक जो कि लातूर में आया था, ठीक है, ओस्मानाबाद जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे 30 सितंबर 1933 को आधी रात को अर्थक्वेक आया था, एंड
दैट इज सो मच डिस्ट्रक्टिव. यू कैन से 10,000 पीपल लॉस देयर लाइफ. इतने सारे लोग सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से अपनी जानें खो देते हैं. दैट इज द, यू कैन से, द नेचुरल फिनोमेना, बट स्टिल इट इज डिस्ट्रक्टिव. On 25 अप्रैल and 12 मई of 2015 earthquake आया था of magnitude 7.8 to 8.1 in नेपाल. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. और अब यहाँ पे पता है आपको क्या देखना होता है, ये पुराना डेटा जो है वो बिल्कुल सही बात है, बट स्टिल अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ जो कि अर्थक्वेक प्रोन हैं. और इसी वजह से हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी नेचुरल फिनोमेना है जिसे हम स्टॉप नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली मेक आवर सेल्व्स दैट मच स्मार्ट कि हमें कोई भी अफेक्ट ना हो. राइट, हमें कुछ इस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनानी है. ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ों के प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम उतने ज़्यादा अफेक्ट ना हो. ठीक है, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी शुड नो मोस्ट ऑफ द सेफ्टी मेजर्स अबाउट द अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में आपको क्या करना होगा, बिल्डिंग कुछ इस तरीके की डिज़ाइन करनी होंगी या फिर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस के साथ उसे स्ट्रॉन्ग मटीरियल से हमें बनाना चाहिए कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस वो सह सके. ठीक है, बिल्डिंग सह सके. When a building is built, the first factor to be considered is the type of soil on which is being built. That is the main thing. कि आपको ये पता करना है, कोई भी बिल्डिंग अगर कहीं बन रही है तो आप सबसे पहले उसकी सॉइल को टेस्ट करवाएं कि वो कितना ज़्यादा होल्ड अप कर सकती है या फिर वो सॉइल कितनी जल्दी गिव अप कर सकती है. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज दैट वो किस में आता है, बेस में आता है, वो नींव में आता है. उसकी स्ट्रांगनेस से वी कैन टेस्ट आउट कि भाई बिल्डिंग कितना स्ट्रांग बनेगा. नेक्स्ट देखिए, आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग इनपुट शुड बी आउट टुगेदर टू इंप्रूव बिल्डिंग डिजाइन एंड बिल्डिंग प्रैक्टिसेस. दैट इज द मस्ट थिंग इंपॉर्टेंट यू शुड डू अबाउट इट. राइट, नेक्स्ट देखो, इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ सॉइल्स मस्ट बी डन बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन. नो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी डन ऑन द सॉफ्ट सॉइल. बेसिकली लैंडफिल स्पेस, सॉफ्ट सॉइल्स पे अगर ऐसा घर बन जाता है, किसी तरीके से अगर घर बन जाता है या फिर कोई बिल्डिंग क्रिएट हो जाती है, तो उस बिल्डिंग के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो छोटे से छोटे अर्थक्वेक में ही गिर जाएगी. डिस्ट्रक्शन हमारा ही होगा, नुकसान हमारा ही होगा. दैट इज वी हैव टू मेक श्योर कि हर सॉइल का बिफोर मेकिंग हाउसेज, बिफोर मेकिंग बिल्डिंग्स, वहाँ पर एनालिसिस हो सॉइल का. जो भी इंजीनियरिंग वहाँ पर लगनी चाहिए वो लगे, सो दैट यू मेक अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जो कि काफ़ी हद तक अर्थक्वेक का इफेक्ट सह सके. ठीक है, बिल्डिंग नॉर्म शुड बी फॉलोड एज फार एज क्वालिटी ऑफ द मटीरियल शुड इज यूज इज कंसर्न. किस तरीके का मटीरियल आप यूज कर रहे हैं, द सीमेंट, द ब्रिक्स, द स्टोन, द रॉक्स. सो इन सब को आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी. यू शुड डेफिनेटली गोइंग टू बी टेस्टेड आउट कि भाई ये सब मटीरियल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. राइट, नेक्स्ट देखिए, एग्जिस्टिंग बिग बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड फायर स्टेशन शुड बी अपग्रेडेड बाय द रिट्रोफिटिंग टेक्निक्स. उनको हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, सो दैट जो पुरानी बिल्डिंग्स है जो ऑलरेडी बन चुकी हैं वो फिर अफेक्ट ना हो. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी अवॉइडेड इन द एरियाज प्रोन टू फायर्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स. आपको पता है कि हमारे इंडिया में देयर आर वेरियस जोन्स. ठीक है, जहां पर आप लोग ये देख पाएंगे कि उस जोन में आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं. ठीक है, कि हम वहाँ घर बनाएं कि नहीं, बिकॉज वो कैसे होंगे, किस बेसिस पे होंगे, अर्थक्वेक के बेसिस पे. राइट, सो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं. सो मेक श्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम दैट, एंड इफ यू आर लिविंग इन दैट प्लेस देन यू नीड टू टेक सेफ्टी मेजर्स अबाउट द अर्थक्वेक. ठीक है, वी शुड मेक श्योर दैट सीलिंग फैंस एंड फिक्सचर्स, एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स आर फर्मली सिक्योर्ड, अदरवाइज दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म ड्यूरिंग दैट ऑल्सो. ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से सिचुएटेड हो, सही मटेरियल का बना हुआ हो, सभी कुछ अच्छे से अगर हम लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह बिल्डिंग का सब कुछ टेस्ट आउट करके करवाते हैं, सो दैट इज पॉसिबल कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी बिल्डिंग झेल सकती है. एंड दैट कैन बी डन क्योंकि उससे हमारे होने वाले जो नुकसान है वो काफ़ी कम हो जाएंगे. राइट, नाउ लेट्स सी द सेफ्टी मेजर्स एट द टाइम जो कि आप अर्थक्वेक के टाइम में ले सकें. एट दैट टाइम क्या ले सकते हैं, लेट्स सी. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ यू आर इंडोर्स, अगर आप घर में हैं तो आपको क्या करना है, हैवी टेबल या फिर चारपाई या फिर इन सब की चीज़ों के नीचे चले जाना है. मेक श्योर दैट. ठीक है, जैसे आप डाइनिंग टेबल के नीचे जा सकते हैं जब भी आपको लगे कि अर्थक्वेक आ रहा है. मेक श्योर सबसे पहले यही काम करना है कि आपको किसी हैवी चीज़ के नीचे चले जाना है. ऑलराइट, ताकि अगर ऊपर से कोई बिल्डिंग गिर रही है, ऊपर से आपका सीलिंग गिर रहा है, आप कुछ भी चीज़ें गिरती हैं तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, ये आपको काम करना है. इफ़ यू आर इंडोर्स इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, you should try to take cover under a sturdy object. Running to the exit may cause a stampede and this could be very dangerous.
कभी आपको लगता है अर्थक्वेक आ रहा है और मान लो आप कहीं और जगह पर हो, लेट्स से यू आर एट दी मॉल, ठीक है, या फिर किसी और पब्लिक प्लेस पर हो, तो आपको क्या करना है, आपको भागना नहीं है टूवर्ड्स दी एग्जिट, क्योंकि सभी लोग ऐसा ही करने लगेंगे और जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक अंडर कवर अंडर अ स्टर्डी ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपको कोशिश करनी है आप ऐसा करें. नेक्स्ट देखिए, इफ यू आर आउटडोर्स मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रीज विच कुड कम डाउन क्रैशिंग. तो आपको इनसे दूर रहना है. अगर आप बाहर है, प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको पेड़ों से, पोल से, बिल्डिंग से दूर हो जाना है कि अगर वो गिरे तो वो आपके ऊपर ना गिरे. ठीक है, फिर आप देखिए कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर रुक जाएं, है ना. अगर सेफ है तो अपनी कार के अंदर ही रहें, बाहर नहीं निकलें. स्टे अवे फ्रॉम द ब्रिजेस, ओवर पैसेस, टनल्स, बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा ड्रैशेज है. आप किसी ब्रिज पे जा रहे हो, वो फॉल हो सकता है, राइट. आप किसी टनल में जा रहे हो, वो फॉल हो सकती है, तो आप वहीं पे स्टक हो जाओगे. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम दीज प्लेसेस. इफ पॉसिबल अवॉइड स्टॉपिंग अंडर ट्रीज, लाइट पोस्ट, पावर लाइन, साइन बोर्ड्स, इन सबसे आपको कोशिश करनी है कि आप दूर रहें. ठीक है, बेसिकली आपको खुद को बचाना है कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर नहीं गिरे. After earthquake, look out for the loose overhanging electric wires. Inform an adult so that these could be taken care of. अगर कहीं से वायर टूट गया है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो दैट कैन बी टोटली डिजास्ट्रस. अगर आपको ऐसा लगता है कोई लूज वायर है, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कॉल समवन जो कि उनको ठीक कर सके. ठीक है, अपने बड़ों को बताएं कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, ताकि सभी उससे बच सके. ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कैन डू वेरियस थिंग्स अबाउट दीज. ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट यू टेक सच सेफ्टी मेजर्स, ताकि आप खुद को अर्थक्वेक से बचा सके कभी भी अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो. ठीक है, वैसे हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते हैं, बट वी कैन टेक द सेफ्टी मेजर्स, वी कैन सेव आवरसेल्फ. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. नाउ दैट इज द मेन थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऐड टू योर नॉलेज, एंड यू कैन ऐड दैट टू. ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. सो देखिए, earthquake can take place at the depth of to 720 km below the earth's surface, but those produce effects at the surface of the earth usually occurs no deeper than 70 km. तो देखिए, ज़्यादातर जो earthquakes होते हैं वो कहाँ से हो सकते हैं, 720 you can say किलोमीटर below the surface of the earth, वहाँ पर earthquake आ सकता है. और वो जनरली जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो 70 किलोमीटर तक जो हैं वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट. तो बेसिकली इतने सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कुछ का तो हमें पता भी नहीं चलता, कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो वो ज़रूर सरफेस तक लेकर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, लोकल पीपल क्या कर सकते हैं, कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मैथड्स को यूज कर सकते हैं बाय सीइंग द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स. जैसे, क्योंकि देखो अर्थक्वेक क्या करते हैं, सीज्मिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं. सीज्मिक वेव कैसी होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं. एंड वी टोल्ड इट, साउंड चैप्टर में हमने सीखा था कि ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जो ह्यूमंस नहीं सुन सकते, इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है. एंड दैट इज द रीजन वी कैन नॉट लिसन दैट. ठीक है, हम उसको फील नहीं कर सकते. एंड दैट इज द मेन थिंग कि दूसरे एनिमल जो कि इंफ्रारेड साउंड प्रोड्यूस सुनते हैं, वो चीज वो क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. सो आप उनके बिहेवियर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट समथिंग इज गोइंग ऑन, अर्थक्वेक कैन बी देयर. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. The fishes in the pond get agitated, the sky becomes silent, and snake comes to the surface, earthquake may occur. So you need to make sure that you take out such type of concern about these things, behavior of the animals, right. Even elephant भी जो है इस तरीके का अलग behavior करता है. Fishes जो होते हैं बहुत ज़्यादा agitated हो जाती हैं. ठीक है, snakes अपने बिलों में से बाहर आ जाते हैं. Alaska is the most earthquake prone state and one of the most seismically active regions in the world. अलास्का सबसे ज्यादा डेंजरस है अबाउट दी अर्थक्वेक. ठीक है, अलास्का एक्सपीरियंस अ मैग्नीट्यूड 7 अर्थक्वेक ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8 और मोर एवरी 14 ईयर्स में वो 8 का स्ट्राइक अप हो सकता है वहाँ पे, और एवरी ईयर 7 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक वहाँ पे अकर हो सकता है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू टेक केयर अबाउट दी थिंग्स, राइट. नेक्स्ट देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द अर्थक्वेक अकर अलोंग प्लेट बाउंड्री सच एज द बाउंड्री सिस्टम बिटवीन द पैसिफिक प्लेट एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. सो बाउंड्रीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन दैट प्लेट नहीं हो रहा है अर्थक्वेक. वो बाउंड्रीज जब कभी भी स्ट्राइक करी उस प्लेस पर यू कैन से कि आपको जो है अर्थक्वेक एग्जिस्ट कर सकता है, बेसिकली वहां पर प्रोड्यूस हो सकता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. तो ये जो फैक्ट्स थे जो आप अर्थक्वेक के बारे में जान सकते हैं, ये मैंने आपको बताया. ठीक है, वी हैव टॉक अबाउट द अर्थक्वेक एंड ऑल. Alright, so now it is time to just end the lecture, and the next lecture we are going to do some questions about these earthquake.
So you need to make sure that you do revise it all. Okay? So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.